Good morning. સર કેમ છો? મજામાં સાહેબ? એકદમ fine. બોલ. બસ સર, આપણે આજે વિદ્યાર્થીઓ જે છે બધે સાયન્સ ફેકલ્ટીના છે. આપણું જે પીએચડી નું કોર્સ વર્ક હતું ને સર, એમાં રિસર્ચ મેથોડોલોજી જે 6 ક્રેડિટ નું હોય એમાં 3 ક્રેડિટ આપણે કોમન કરાવી સર, રિસર્ચ પબ્લિકેશન એથિક્સ ને બેઝિક્સ ઓફ રિસર્ચ, અને બાકીની 3 ક્રેડિટ હવે છોકરાઓ ફેકલ્ટી વાઇઝ કરે છે. તો અત્યારે આપણે સાયન્સ ફિલ્ડની રિસર્ચ મેથોડોલોજીનો કોર્સ વર્ક કરીએ છીએ, અને જેની અંદર એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ, લાઈફ સાયન્સ, જીઓલોજી, મેથેમેટિક્સ, ફિઝિક્સ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ આ બધી વિદ્યાર્થીઓ છે સાહેબ. તો સર બધી જ ડિસિપ્લિન ના છે સાયન્સ ની? યસ સર, સાયન્સ ની બધી ડિસિપ્લિન છે. સો વેરી ગુડ મોર્નિંગ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ. સાહેબ 30 જણા છે ટોટલ, અને અમુક લોકો ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી 2-3 એટેન્ડ કરે છે, એટલે પ્રેઝન્ટ 20 થી ઉપર છે. તો બસ સાહેબ સ્ટાર્ટ કરી શકીએ? હા, શ્યોર. Okay, so very good morning students. So today is the 4th day of our PhD coursework, અને આજે આપણા સર છે પ્રોફેસર એમજી ઠક્કર સર, જેઓ આપણી યુનિવર્સિટીમાંથી અત્યારે બીએસઆઈપી લખનૌમાં ડાયરેક્ટર તરીકે ત્યાં રેપ્યુટેશન ઉપર છે સાહેબ. અને મારી પર્સનલ વાત કરું તો મારા ગાઈડ છે, હું જ્યારથી જીઓલોજીમાં આવ્યો ત્યારથી. ઓકે, અને આપણે બધે ઠક્કર સરથી પરિચિત છીએ, અને સર થેન્ક યુ સો મચ કે આટલા બિઝી શેડ્યુલમાંથી પણ આ ટાઈમ મળ્યો આપને. અને સર આપને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ આ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરો. થેન્ક યુ સર. Let me share the screen. Basically, હા સર, there is some problem sharing the screen. સાહેબ હમણાં આવી ગઈ હતી, આવી ગઈ હતી હમણાં. સાહેબ ખાલી એન્ટર સ્ક્રીન શેર કરજો. આમાં શું વિન્ડો કે ટેપ કરશું તો ખાલી કોમ્પ્યુટરનું ઇન્ટરનેટ દેખાશે. Enter screen. એન્ટર સ્ક્રીન કરીને પછી જે ટીવી દેખાય એન્ટર સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરશો ને, અને પછી શેર થશે. એન્ટર સ્ક્રીનમાં જઈ અને જે નીચે બોક્સ દેખાશે ને એમાં એન્ટર સ્ક્રીન વાળું ટીવી જેવું પછી જ થશે. તમે સાહેબ એન્ટર સ્ક્રીનમાં ગયા? ઓકે સર, દેખાય છે કમ્પ્લીટ સાહેબ, આવી ગઈ. હવે સાહેબ ડાયરેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરી નાખો, તમારી સ્ક્રીન જોઈ શકીએ. હા, બટ એટલે મતલબ તમે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં નીચે જે ટેબમાંથી ક્રોમની બાજુમાં છે ને પીપીટી, એ ચાલુ કરી નાખો ડાયરેક્ટ સાહેબ. યસ, એમાં જે પીપીટી છે. દેખાય છે? હા સર, દેખાય છે. જે સ્લાઇડ બદલાવો ને સાહેબ, કન્ફર્મ થઈ ગઈ. સ્લાઇડ ચેન્જ કરો સાહેબ, નેક્સ્ટ કરો. ઓકે સાહેબ, એમની સાહેબ બરાબર હતું, F5 થી બરાબર હતું. આ તમે Can you see the change? ના સાહેબ, હા દેખાય છે સાહેબ, કમ્પ્લીટ દેખાય છે. સ્લાઇડ ચેન્જ કરી મેં. હા સર, દેખાણી. યસ, કમ્પ્લીટ દેખાય છે ને? સ્લાઇડ ચેન્જ. યસ સર, દેખાય છે. રેડી સાહેબ? Okay. Yeah, thank you sir. Okay. 1 minute. I will just without sharing, I'll talk to the students first. There are some problems with sharing. Anyway, I'll share later on. Let me start just as without the PowerPoint. Can you hear me? Yes sir. At least one person out of you should be communicative with me. Yes, and all of the students, I warmly welcome to this dais of KSKV Kutch University. Kutch University, all of you from the science background, and the Kutch University is known more by the science faculty students, because as I have experienced last several years, the students of the science faculties, they are going abroad everywhere in the world and all over India, and they spread our knowledge of Kutch and the unique territory of Kutch all over the world. And
having been trained here in the Kutch laboratory, I would say it is a laboratory. Not only geology, but the environmental science, the ecology, the climate science, the topographical systems, and very unique marine ecosystems. So you just say the things in science, it is there in Kutch. So all of you are really blessed to be a student of the Kutch University. Is it comfortable with you in English or Hindi? Because I would say कि आपको हिंदी में या गुजराती में थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा लगेगा. हाँ सर, हिंदी will स्टूडेंट्स be के साथ हिंदी में भी बोल सकते हिंदी हैं. हिंदी because we have some students from हमारी Assam also. हमारी राष्ट्रभाषा है जिसका उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में तो आप सभी कम्युनिकेट करोगे जब आप सब्जेक्ट में जाओगे. So as you know, I was the head of the department in the Department of Earth and Environmental Science. Recently, I was posted here in Birbal Sahani Institute of Biosciences. Just एक या दो दिन पहले आपने बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट से किसी का लेक्चर सुना होगा, डॉक्टर कमलेश कुमार का, जिसमें you might have got the idea of these institutes, what actually interdisciplinary and multidisciplinary research our institutes is doing, our scientists are carrying out and catering to the research students all over India. Every year we are getting more than 50-60 students from different backgrounds, but mostly the geology, botany, and related sciences, life sciences. So let us share my screen. We can have an overall idea about the research. 1 minute, okay? Enter screen again, share. Okay sir, देखाई जाए. दिखाई छे ना? हाँ सर. Okay. So a very simple thing, what is basically a research? That if we start about the research as overall idea on philosophy of the research is actually a very interesting continuous process in our life. If you think you are doing the marvels in this world, doing research on a simple small item like what you have seen here on the screen, foraminiferous, very minute animal, microorganisms. There are some others microorganisms. If you think you are working on it and you do marvels, there are issues of the entire universe. There are issues of a very simple thing. But what you do is basically just, you know, आप सिर्फ एंड सिर्फ किसी चीज को जानना चाहते हो. जो कुछ है, जो ज्ञान है, जो स्प्रेड हुआ है पूरे दुनिया में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको आप जानना चाहते हो और जानते हो. कुछ नया नहीं करते. नया करने के लिए हमारी कोई ऐसी, वी आर नॉट इन द बेसिकली अ क्रिएटर. The thing which is there in the world, in the universe, we actually wants to know, and we just know the pollens and pores, the diatoms, the atomic energy, nuclear energy, पानी की जो शक्ति है, सूरज की जो शक्ति है, सभी कुछ है. हम उसको सिर्फ जानते हैं और उसको हम रिसर्च बोलते हैं. ज्ञान हम पाना चाहते हैं और जो है उसको जानना चाहते हैं. सिर्फ इतना ही है, कुछ नया नहीं करते. रिसर्च शब्द, जो अनुसंधान शब्द कहां से आया? जब आदमी ने इस संसार में, जब ह्यूमन बीइंग आया और आदमी ने अपने तौर से, अपने तरीके से, अपनी स्वार्थ के लिए
इस पृथ्वी को एक्सप्लोर करना चाहा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े बड़े एनिमल्स हो या तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हो, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कौन सा तरीका है उसको जानते हैं, उसको हम रिसर्च बोल देते हैं। हालांकि दिस इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर ह्यूमन बीइंग भी नहीं था, आदमी इस संसार में नहीं था, तभी भी ये रिसर्च था, लेकिन आदमी नहीं था। आप समझिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये रिसर्च कोई करता नहीं था। नेचर में ये पूरी एक कॉस्मिक हार्मनी थी और ये बैलेंस होती रहती थी। हम इसको कॉस्मिक बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है या तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तो कई प्रकार के जीव या तो नष्ट हो जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले सकते, ऑक्सीजन को ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम मरना शुरू कर देंगे, हमारा धीरे 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 लुप्त होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो एनिमल किंगडम अच्छी तरह से पनपता है, बड़े बड़े एनिमल भी होते हैं। जब जब डायनासोर हुआ था, इस संसार में डायनासोर पैदा हुआ, तो देखा गया था कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। जब बड़ी बड़ी पेड़ पौधे यहाँ पनपते थे, जो हम कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं, तब ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी। तो ये पूरा संसार है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और वातावरण में अलग अलग प्रकार के वायु आते जाते रहते हैं और उसके हिसाब से पृथ्वी में संतुलन बना रहता है। तो ये बहुत बड़ी अनूठी चीज है। जब हम नहीं थे, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। उससे पहले 13 अरब साल पहले, 13.2 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। तो उस टाइम भी क्वासास थे, उस टाइम भी क्वांटम्स थे, उस टाइम भी ब्लैक एनर्जी थी, उस टाइम भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से छोटे पार्टिकल्स, मैसॉन और कई छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, न्यूक्लियर का गठन हुआ, न्यूक्लियस का गठन हुआ। तो ये सब चीजें पहले से थी। आज हमने जाना है कि ये सब हुई है, आज भी होती रहती है और कई साइकिल में होती रहती है। तो ये सब जानना हम बोलते हैं रिसर्च, बट in nature it is a continuous process, and that is why I have given this title as a research in science is a continuous, multidisciplinary and interdisciplinary process. तो हम जरा थोड़ी we'll go back into the history that in when human came, how they actually perceive to the nature which is changing, which is continuously रिसाइकलिंग। तो उनके प्रति इनका प्रतिभाव क्या था आदमी का, और उन्होंने उनको दहन और दोहन करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये रिसर्च है पिछले 100 साल 200 साल हमारे इंडस्ट्रियल एरा या तो प्री इंडस्ट्रियल एरा, जिसको हम हमारे भारत में मुगल पीरियड होते हैं, लेकिन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में उसको रेनेसां पीरियड भी बोलते हैं। और इससे पहले हमारा गोल्डन पीरियड जो हम बोलते हैं कि पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी, जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं, हमारा सुवर्ण काल। तो क्या उस काल में कुछ रिसर्च नहीं हुआ था? सभी पहलू में, सभी चरण में बहुत सारा रिसर्च हुआ था। और जैसा कि अभी हमारे पास अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उससे पहले भी कुछ था कि जैसे they used to use each and every element of this nature. But I would say that they were using, the early people, I would say the Vedic period till today, till last 200 years back, I mean 17th or 18th century, people used to use everything sustainably. But when industrial era came, हम sustainability भूल गए।
आज हम इतनी ज्यादा भूल गए कि हम हमारे विनाश पर आ चुके हैं। तो हम थोड़ा आगे जाएं। जब हम बात करते हैं कि एक पृथ्वी के बारे में हम सोचते हैं, जो ये मेरा कर्सर यहाँ है, आप देख सकते हो चिराग? यस सर। मेरी सेकंड स्लाइड देख सकते हो ना आप? हाँ, तो इस यस सर। पूरे सूरज की कंपैरिजन में, दिस इज द सन, इट इज हैविंग 1.39 मिलियन किलोमीटर का डायमीटर है, और हमारी पृथ्वी यहाँ डायमीटर 12,600 किलोमीटर का डायमीटर, बहुत छोटी तक रही है। हम जितनी समस्या से जूझ रहे हैं, जितना हम इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल है सूरज की कंपैरिजन में, आप देखिए। और जितनी समस्याएं हम अभी इस स्लाइड के बाद हम देखेंगे, हमने जितनी खेल खेला है इस पृथ्वी पर, ये सब इस छोटे के कण के ऊपर है। सो सोलर सिस्टम इज अ वेरी बिग सिस्टम। हम इसमें क्या हो रहा है वो भी जानना चाहते हैं। इससे भी आगे हम चलते हैं कि इस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा कण अगर पृथ्वी है, तो इस सन, ये पूरी गैलेक्सी का एक छोटा सा कण है। तो आप समझिए कि कितना छोटे एक कण के अंदर एक छोटी पृथ्वी है, जिसके अंदर हम ये सब समस्या से जूझ रहे हैं और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा सिंपल हम कितनी गति में है वो दिखाने वाला ये एक छोटा सा स्लाइड है। हम इस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हम कितनी जबरदस्त गति में है। हमारी जो स्पिन है, एक्सियल स्पिन, वो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पिन से हम गति कर रहे हैं आज भी। और पृथ्वी जब सूरज के आसपास गति कर रही है, एक रिवॉल्यूशन है, वो रिवॉल्यूशन 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की गति से हम एक यान में घूम रहे हैं। हमारा एक स्पेस शिप है, जो पृथ्वी हमारा स्पेसशिप है, हम इतनी गति से घूम रहे हैं। और सूरज भी इतनी जबरदस्त गति से घूम रहे हैं, जिसकी ये वैल्यू है 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज भी घूम रहा है। 1 घंटे में हम 7 लाख किलोमीटर। तो ये माइंड बॉगलिंग फैक्ट है, और ये फैक्ट है। और वो किसने समझाया? ये समझाने वाला हमारे पास एस्ट्रोनॉमी का जो मास्टर है, स्पेस साइंस का मास्टर है, हमारे अलग अलग हबल स्पेस टेलीस्कोप, और कई नासा ने और इसरो ने कई स्पेसशिप भेजे हैं और कई उपग्रह भेजे हैं। उनसे जो पिक्चर्स आते हैं, तब हम ये जाके एक जियोलॉजिस्ट या तो एक कॉमन मैन बोल सकता है कि ये सब चीजें हैं। तो ये इस सब में मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की जरूरत होती है। साइंस का एक भी कंक्लूजन या जजमेंट आप बोलते हो, तो इसके अंदर कई डिसिप्लिन already it is embedded inside it. So let us go to the very conventional idea and contemporary. Till date, maybe in the common your course structure, you might have gone through the conventional contemporary notion of the research processes. तो ये 7 स्टेप्स जनरली आपने देखा होगा कि भाई पहले डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, हमको रिसर्च चालू करना है। तो चालू करने के लिए एक प्रॉब्लम मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद मैं उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द जितना काम किसी ने किया है उसका रिव्यू करूंगा, लिटरेचर जो अवेलेबल है उसको पकड़ूंगा। इसके बाद में कोई हाइपोथेसिस मेरे प्रॉब्लम के on my problems, I would construct some hypothesis कि this can be done or this can be the outcome. एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि जो प्रूव नहीं है, मुझे प्रूव करना है अलग अलग स्टेप्स है। तो चौथे चरण में हम जाएंगे कि एक छोटी सी रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। फिर डेटा कलेक्शन, या तो जियोलॉजिकल होगा तो हम रॉक डेटा, टोपोग्राफिक डेटा, कोई जूलॉजी का होगा तो
अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डेटा इकट्ठा करेंगे, अलग जगह जाएंगे, कोई एक स्पेसिफिक रीजियन को पकड़ेंगे, सोशल होगा तो सोसाइटी में जाके अलग अलग प्रकार का डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें हम हमारे हाइपोथेसिस को साइंटिफिक मेथड से प्रूव करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो आजकल सभी कन्वेंशनल सिस्टम में होते हैं, लेकिन वो जो पहले के लोग, मैं जो बता रहा हूँ कि आज से कई हजार साल पहले जो कुछ रिसर्च कर रहे थे, हम पृथ्वी से अलग अलग चीजें यूज कर रहे थे, तो क्या वो लोग ये ऐसे स्टेप्स करते थे? नहीं, उनको रिसर्च प्रॉब्लम दिखाई देता था, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनकी नीड देखते थे, कौन सी नीड उनकी है और कैसे जाएंगे। तो दिस इज अ बिग process, not one day's process. So this is very simple step which you can see. But in the present day, as I said, that every subject in science, say for example, we are talking about science, they are interrelated. So I would give best merit to this figure. If you see this figure, can you see everybody? Chirag? The chord diagram. Yes, sir, it is You can visible. see, okay. So anybody who is actually reading the diagram, this is very interesting. Suppose you see the environmental and geology at one side. So we have divided this entire science into 0.1. Okay. So out of them, this percentage, less than 50%, is connected with the basic life sciences. This subject, environment and geology, is connected with the basic life science. And almost 40% is connected with the engineering. You see, the cord और चा ये इतने लंबे लंबे लगा है, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस इनकी इंटेंसिटी पर निर्भर है कि वो कितना किसके साथ जुड़ा हुआ है। जो पतली लाइन है तो वो ज्यादा उस सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है। तो आप एक एक चीज चेक कर सकते हो कि एक छोटा सा कलर है जो केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। इंजीनियर एनवायरमेंट एंड जियो साइंस के कुछ कुछ पहलू जो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा है। जैसे कि केमिस्ट्री हम लेंगे तो केमिस्ट्री का बहुत सारा जो रिसर्च परस्यूट्स है, या तो पूरा केमिस्ट्री इज मोर 50% से ज्यादा कनेक्टेड है मटेरियल साइंस, और फिजिक्स एंड स्पेस साइंस भी केमिस्ट्री के साथ जुड़ा है, और कुछ हिस्सा है जो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा है। तो इतना अच्छा डायग्राम ये मैंने देखा और मैं समझता था कि मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि इससे आपको पता चलाएगी कि एवरी साइंस in this nature they are interconnected with different science. कोई बहुत ज्यादा है, कोई कम है, लेकिन ये हम साइंस की बात करते हैं। लेकिन हम अगर साइंस से भी आगे जाएंगे, जो हमारी संवेदना है, हमारा सोसाइटी है, हम एक बड़ा सोसाइटी बनाते हैं, समाज बनाते हैं, और समाज के साथ भी साइंस जुड़ा हुआ है, कॉमर्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अभी आदान प्रदान विनिमय करते हैं। तो अगर हम सब कुछ साथ में ले लें तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स वेब होती है। आप देखिए कि ये साइंस इसमें हर जगह है, और इसमें हमने साइकोलॉजी भी लिया है क्योंकि ह्यूमन इज इन्वॉल्व, हमने सोशल स्टडीज भी लिया है। तो एवरी नोड is a different science and different discipline, sorry, and they are all interconnected and they are strongly making a complex web systems. So this is what you must know, that what you are doing and what you are going to do in research, that is connected with everybody. But nowadays our government and most of the other developed countries government, they are more focusing on the societal aspects. Whatever you do, whether you are a science, whether chemistry, environmental science, earth science, geography, or clinical science, medicinal science, that is purely for the human being. Of course, agricultural is also purely applicable to the human being. Engineering purely for the humans. So
these all science what you do should be in applicable to the society. Then new concept actually came. When you see we think about applicability in society, then it is a very much injustice to the nature. क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैं जितना काम करूंगा वो सोसाइटी को ही कहीं ना कहीं प्रदान होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसी तरीके से जाएंगे तो हम सोसाइटी को प्रदान करते करते हम जिस साइंस को नेचर को, क्योंकि साइंस नेचर के अंदर है, मैंने पहले बता दिया, तो नेचर को हम आज नहीं तो कल इतना नष्ट कर देंगे। जैसे कि खदान है, कोयले की खदान है, पेट्रोलियम का हम उत्खनन करते हैं, बहुत सारी मिनरल्स का उत्खनन करते हैं, पानी का दोहन करते हैं, कई मटेरियल पर पृथ्वी से या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से हम दोहन करते हैं, सॉइल का दोहन करते हैं, तो हम कुछ देते नहीं है पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए, नहीं देते हैं। तो एक दिन पृथ्वी बैलेंस अपने आप करेगी और कुछ न कुछ ऐसा हादसा हमारे सामने डिजास्टर पैदा करेगी। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए कि जितना हम काम करते हैं वो सोसाइटी के साथ तो करेंगे, लेकिन इट शुड बी सस्टेनेबल, क्योंकि हमको इस पृथ्वी के हर पहलू को, जिससे हमारा जीवन है, पानी, हवा, या तो सॉइल, या तो रॉक, या ओशन, एटमॉस्फेयर, इन सब हमको किसी ने इनहेरिट किया है, हमारी पिछली पीढ़ी ने हमको दिया गया है, अगली पीढ़ी को हमको देना है। अगर आप आज 25 साल में हम सब कुछ यूज कर देंगे, आपके ही बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, जो नई पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए हम उसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको जीने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये सब जितना रिसर्च आप करोगे साइंस के अंदर या तो साइंस के बाहर, आपको ये समझना है कि is connected, and what you do is affected to everybody in the society, in the world, in the universe. आप कुछ बोलते हो तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ये तो आप, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भाषा में भी बात करें तो ये सब कुछ सत्य है। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इसके बाद हम थोड़ा धीरे आगे जाएंगे कि इतिहास में भी ये सब कैसे हमारे पूर्वज ने रिसर्च कैसे किया होगा, how did they do research, how did they actually perceive to the nature, and how sustainably they use the nature without harming or less harming to the nature. So this is very common the definition of interdisciplinary research, that we integrate information, data, different techniques, different tools, different perspective, concepts, or theories from two or more disciplines or bodies of specialized knowledge that can be said as a. And if you have a varied discipline and varied concepts which is not connected directly into each other, like science to commerce, they are connected, but their connection is very blink. So in that case, we can say it a multidisciplinary research. So as I said, when human came to this world, then we started evolving the ideas. What we have seen surrounding us, we have seen the stars, we have seen the sun, very nearest object is moon and sun. And we thought about their motion into the space. बहुत कुछ है। मैं अगर, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 6 या 7,000 8,000 साल पहले चला जाऊं, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई गैजेट्स नहीं है, तो मैं इस सन को और मून को कैसे सोचूंगा? तो when you think like that, you will come to know that our ancestors, how did they started doing research? इनके पास ये कुछ आज आपके पास जो चीज है कुछ भी नहीं था, और इन्होंने फिर भी क्या क्या दिया वो आज हम देखेंगे। कितना इंटरडिसिप्लिनरी, कितना मल्टीडिसिप्लिनरी और कितना मल्टीफेसेटेड काम इन्होंने किया है, वो मैं थोड़ा आज समझाऊंगा, जैसे जो आपको कहीं लिखना नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आइडिया जनरेट करने के बाद, जैसे कि कोई पत्थर है, पत्थर इन्होंने देखा, पत्थर की हार्डनेस पहले चेक की,
और उस पत्थर की हार्डनेस से इनको पता चला कि इस पत्थर से हम दूसरे पत्थर को काट सकते हैं, इस पत्थर से हम चमड़े को काट सकते हैं, इस पत्थर से हम किसी चिड़िया को मार सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये 1 बाय 1 पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पूरा ज्ञान जनरेट ट्रांसफायर होता रहा। बहुत अनूठी कहानी है, मैं आपको इस जर्नी में ले जाऊंगा। तो फिजिकल मोटर एक्शन भी आइडिया के बाद इन्होंने स्किल प्राप्त करना शुरू किया। आइडिया किसी को आया, इससे उन्होंने स्किल प्राप्त करना शुरू किया, लोगों ने स्किल प्राप्त कर दी कि एक छोटे छोटे इंडस्ट्री बनाते हैं। इसके बाद ये सब चीजें हमारे डीएनए में इम्प्लांट होता गया। आज हम जितना इवॉल्व ह्यूमन बीइंग है, वो हमारे डीएनए में एवरीथिंग इज इम्प्लांटेड, कि क्या चीज, कौन सी चीज को मुझे कैसे बिहेव रिस्पॉन्ड करना है। तो we will go to the simple system where you must understand that the people, the human beings which started on this earth 2.5 million 25 लाख साल पहले यहाँ आए, और 25 लाख साल में वो अपनी 4 पैर से 2 पैर में चलना शुरू किया। जैसे कि होमो इरेक्टस, इरेक्टस मीन्स वो स्ट्रेट होना शुरू कर दिया। 1.5 मिलियन, दैट मीन्स 15 लाख साल से लेकर के 0.8 मिलियन, दैट मीन्स 8 लाख साल। तो इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ इस चित्र में आप सब देख रहे हैं कि अग्नि का आविष्कार किसी ने नहीं किया, अग्नि को उन्होंने जानकर उसका यूज करना शुरू किया है कि कैसे हम हमारे कंट्रोल में ले आते हैं अग्नि को, और उस अग्नि से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, पका सकते हैं। पहले कच्चा मीट खाते थे, फिर उन्होंने मीट को पकाया, अच्छा लगा, अपना सेहत का भी ख्याल रखा। तो दिस इज हाउ दे ग्रू एंड दे डिड रिसर्च। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली मैन, the caveman or early human. They started doing research several times. They didn't have the idea that ये 7 स्टेप मुझे फॉलो करना है, लेकिन इनको कई साल लग गए, एक नहीं दूसरी हजारों पीढ़ी लग गई कि ये चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। तो आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं कि इन लोगों में एक सोशल भावना भी क्रिएट हो गई। फ्यूनरल की, हमारे कोई आदमी मर जाता है तो उनका फ्यूनरल निकालते हैं, वो एक पवित्र चीज होती है, दुखदायक भी होती है, पवित्र होती है। ये सब भावनाएं इनमें पैदा हुई। इनको कपड़े पहनना शुरू किया, क्योंकि they did research on several things, on the things which they got from the nature, क्या चमड़ा या तो पत्ते, ये सब चीजों से इन्होंने एक फ्लिंट की, इंडस फ्लिंट एक पत्थर का नाम होता है, तो इनसे दे हैव सीन कि भाई ये फ्लिंट है, वो बहुत ही 7 और 8 उसकी हार्डनेस है, जिससे हम टूल बना सकते हैं। तो फ्लिंट के टूल बनाना शुरू किया। तो ऐसे हजारों साल की हिस्ट्री है जिससे दी सिस्टमेटिक रिसर्च हुआ, जो हम देख सकते हैं कि घर बनाना शुरू किया। पहला एक छोटा सा घर जो 4 लाख साल पहले फ्रांस में मिला है, कि जो होमो इरेक्टस ने हैंड बिल्ट शेल्टर बनाया। इसके बाद इजराइल के अंदर एक 23,000 साल पहले का जो घर मिला, जो ईयर राउंड शेल्टर बोलते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आविष्कार हुई, जो जानते गए। जैसे कि इसमें देख सकते हो कि होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस तक अलग अलग टूल। पहले लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो बड़े बड़े टूल है, कि जो पत्थर के टूल बना के they used to hunt the animals। तो दूर से एनिमल्स को मार रहे थे, तो इसके लिए बड़े पत्थर थे। लेकिन फिर एनिमल भाग जाते थे, मरते नहीं थे, तो इन्होंने एरो बनाया। तो एरो के लिए छोटे छोटे माइक्रो टूल बनाए। तो जैसे जैसे टाइम चलता गया, पेलियोलिथिक पीरियड से माइक्रोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में टूल की शेप, साइज एंड शार्पनेस बढ़ती गई। तो बेसिकली
इन्होंने रिसर्च किया होगा हर चीज के, पत्थर के ऊपर, अलग अलग प्राणी के ऊपर रिसर्च किया होता है, कौन जल्दी भाग जाता है, कौन सी चिड़िया जल्दी उड़ जाती है, कौन सी नहीं उड़ती। तो ये सब चीजें हमको आज अलग अलग प्रकार की रॉक शेल्टर, रॉक केव्स के अंदर, अलग अलग पेंटिंग के अंदर इसका पूरा चित्रण मिल रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास 1-1.5 घंटा है जिसमें हम काफी सारी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हम रिसर्च की बात करें तो ये जब से ह्यूमन बीइंग की एंट्री हुई इस जगत में, तब से सिस्टमेटिक तरीके से आज रिसर्च हो रहा है। तो हम अभी थोड़े छोटे विंडो में आ जाते हैं कि जो हम 4,500-5 हजार साल की विंडो में, जब से हम सिविलाइजेशन शुरू किया, तो पूरे विश्व में बहुत माने जाने सिविलाइजेशन है, जिसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसे सिमिलर हम समकक्ष जितने सिविलाइजेशन है, जिसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको मेसोपोटामियन जो इफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर के किनारे पर पनपा, नाइल के किनारे पर जो सिविलाइजेशन हुआ, जिसको हम मिस्र का सिविलाइजेशन बोलते हैं, और उसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो सिविलाइजेशन बना, इसको हम माया सिविलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे हुआंगो सिविलाइजेशन जो चाइना के अंदर हुआंगो रिवर के आसपास, येलो रिवर के आसपास बने, सबका जो काल है वो करीब करीब 6,000 से लेकर 4,500, आज से 4,500 पहले का, और 6,000 कोई 6,500 का है। लेकिन इन सब में सबसे अनूठा जो है, जो इंडस सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा एक प्रमाण है कि पहली बार इसी सिविलाइजेशन में सैनिटरी सिस्टम, प्लम्बर एंड इन हाउस सैनिटेशन सिस्टम एंड गटर सिस्टम का आविष्कार किया, जो किसी सिविलाइजेशन में मिलता नहीं है। तो हर एक सिविलाइजेशन की कोई खासियत है जो हम यहाँ नहीं चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल कच्छ के अंदर है इंडस सिविलाइजेशन का, जो आप कभी भी जाकर देख सकते हो, जो धोलावीरा सिटी है, जो बहुत ही छोटा सा, कुछ ही एकड़ में फैला हुआ ये छोटा सा हड़प्पन सिटी है। लेकिन इफ यू गो एंड सी, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर एंड एनी वेरी इंजीनियरिंग सिस्टम। आप देखोगे कि इसके जितने रिजर्वायर सिस्टम है, आप क्या बात है, So if you see the kind of development they made in this small diagram, there are several reservoirs. So they used to have a deep sense of the irrigation system. They used to have a deep sense. आज से 5,500 साल पहले कि इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, इनका वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम भी पानी यहाँ इतना ही था जो आज गिरता है, एरिड रीजन ही था। 2 रिवर के बीच में, रिवर तो है ही नहीं, वो स्ट्रीम है, इसके बीच में हर एक बूंद का इन्होंने कैसे यूज किया, इस्तेमाल किया। आज भी जो रिजर्वायर और डैम बना है, वो आज भी जो 5,500 साल पहले एक्टिव कंडीशन में था, आज अगर पानी गिरता है तो वो आज भी इसी जगह वो एक्टिव सिस्टम में काम कर सकता है। तो इतना अनूठा काम और इतना अनूठा इंजीनियरिंग, हाइड्रो इंजीनियरिंग सिस्टम ये हमारे पास देखने को मिलता है। इन्होंने जियोलॉजी का भी अभ्यास किया था कि ये फॉल्ट है, फॉल्ट का उपयोग, जियोलॉजिकल फॉल्ट का उपयोग इन्होंने रिजर्वायर में कैसे किया कि इससे ही the water which goes down and it recharges the groundwater. So this is very important. I can summarize that they are very
intellectual person. If you go to other civilization, Egyptian civilization, similar period में बड़े बड़े पिरामिड बनाए. आप सिर्फ एक पिरामिड देखते हो, यहाँ एक छोटा सा आदमी को हम देखते हैं कि ये गाड़ियां और ये ह्यूमन फिगर है या तो कोई एनिमल है जो कैमल है, तो इसके सामने ये अभी देना है, आधे घंटे में दे दो, उनको बोलो कि आधे घंटे. तो इनके सामने ये अगर एक पत्थर देखेंगे तो each rock is not less than 2.5 tons, and the biggest rock is more than 12 tons. So if you think some of these stones, big stones, limestone, they are limestone, they are around 8 to 10 tons. And how did they actually lift this big stones? एक बड़ा जो खुफू का पिरामिड है, इसमें 23 लाख ब्लॉक्स है, 23 लाख ब्लॉक्स है, जो इन्होंने कई 100 किलोमीटर दूर से इसको ट्रांसपोर्ट किया था. और इतने टन के पत्थर, आज अगर मुझे ये पिरामिड बनाना है, आज मेरे पास पूरी इंजीनियरिंग सिस्टम है, मेरे पास क्रेन है और बड़ी बड़ी क्रेन है जो आज कोई कॉमन मैन कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा. ऐसी क्रेन लेके अगर मुझे आज इस पिरामिड, इस कद का पिरामिड बनाना है, तो इन्होंने जितना टाइम लिया था इतना ही टाइम शायद हमको लगेगा इस क्रेन होने के बावजूद भी. तो सोचिए कि उस टाइम जितने टाइम में इन्होंने पिरामिड बनाया, और ये एक नहीं है, पूरे नाइल बेसिन में, पूरे इजिप्ट में करीबन 125 पिरामिड्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़े पिरामिड को ये वाला है जिसमें 23 लाख पत्थर है. सोचिए कि कितना रिसर्च करने के बाद इन्होंने कई किलोमीटर दूर से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया होगा और इसको सही तरीके से काटा होगा और उसको सही तरीके से लिफ्ट किया होगा, और वो भी ज्योमेट्रिकली इतना परफेक्ट है कि इस ज्योमेट्री का भी किसी ने रिसर्च किया होगा कि इस ज्योमेट्री से हम कोई भी चीज इसके बिल्कुल मिडल में, सब कुछ एक ज्योमेट्री के तहत होता है कि हम डेड बॉडी को, हम ह्यूमन बीइंग को, या तो हम लाइव जो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म या तो कोई एनिमल है, इनको एक सर्टेन जगह पे हम रखेंगे तो वो ऐसा का वैसा रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा. तो आज ये इतने 1000 साल के बाद हम साइंटिस्ट के लिए भी एक बड़ी पहेली है. वो बोलते हैं क्या, इट इज अ वेरी बिग मिस्ट्री. तो सोचिए कि कितना रिसर्च किया होगा इन लोगों ने और कितना स्किल होगा रिसर्च के बाद, इस आइडिया के बाद स्किल भी चाहिए. आई जस्ट वांट टू नो, शो यू the work did by our ancestors. If we talk about last 6000 years, so we started from 6000 years. If you see the 4th century BC, अभी हम वैदिक पीरियड में आ जाते हैं. तो जितना अभी हमको मॉडर्न जो हम यूज कर रहे हैं, जितनी फिजिक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, जियोलॉजी के लॉ, एनवायरमेंट्स के लॉ, और जो कुछ हम आज यूज कर रहे हैं वो वैदिक पीरियड में आविष्कार कर दिया था, उनका रिसर्च कर दिया गया था. हम उसको कैसे यूज करके हम हमारी लाइफ और सस्टेनेबल बना सकते हैं, हमारी जो कुछ एक्ट है उसको सस्टेनेबल बनाते हैं. आप देखिए कि न्यूमरल्स की आविष्कार पाणिनि ने 4th सेंचुरी बीसी में किया था. जितने हम न्यूमरल्स यूज करते हैं 1 2 3 4 से 0 तक, 0 का आविष्कार भी हमारे यहीं हुआ है, आर्यभट्ट ने किया है. तो ये सब चीजें मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा. डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ वैदिक पीरियड का आविष्कार है. 2500 बीसी इंडस वैली में भी डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता था. आप इसके छोटे छोटे वेट देखिए, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम के वेट है. ये डेसिमल सिस्टम 4500 साल पहले हमने एडप्ट किया था. आज कोई वेस्टर्न कंट्री दावा कर रहा है कि ये सब हमारा आविष्कार है, ये भी गलत है. आविष्कार किसी का नहीं है, लेकिन हमने पहले जान लिया था
और ये बहुत ही सटीक तरीके से यूज हो रहा था. If you see binary numeral system, that is also in our Pingal Sahitya, it is written. जो हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं, तो फिबोनाची नंबर आज किसी और ने दिया है वेस्टर्न कंट्री में, जो कि 15वीं शताब्दी में, लेकिन हमारे पास पिंगला साहित्य में ये 5th और 2nd सेंचुरी बीसी में भी इनका जिक्र है, जिसको मात्रा मेरु बोलते हैं. तो फिबोनाची नंबर. तो ऐसे भास्कराचार्य ने अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल्स दिया, जो हमारे सुवर्ण काल में हुआ 499 एडी में, आर्यभट्ट ने भी जो कुछ अरिथमेटिक का फंडामेंटल्स दिया, वो ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया में सब कुछ ज्ञात है, सबको ज्ञात है. हमारा सुवर्ण काल में जितने ग्रंथ लिखे गए वो आज हमारे पास नहीं है. हमने संस्कृत सीखना छोड़ दिया है. हम संस्कृत को ट्रांसलेट करने, मैक्स मुलर ने जब ट्रांसलेट कर दिया, और वो हमारा ही अलग अलग ग्रंथ, जो मैं ग्रंथ का नाम यहाँ बहुत सारे बोलूंगा, एक तो आपको लीलावती यहाँ दिख रहा है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टी है, ये सब ग्रंथ का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में हुआ, जर्मन भाषा से अंग्रेजी में हुआ, और इसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में. हम संस्कृत में नहीं पढ़ते हैं. हमारी ये भी तो विडंबना है. और हम बोलते हैं कि सभी बाहर से आया. रिसर्च बहुत हो चुका है भारतवर्ष में. जो रिसर्च हुआ है कोई अनगिनत रिसर्च है. मोहनजोदड़ो हड़प्पन समय में, आज से 4500 साल पहले ट्रिगोनोमेट्री का भी आविष्कार हुआ था. तभी तो ये इतने बड़े बड़े नगर बना सकते हैं. हम अगर हमारे वैदिक काल की बात करते हैं तो सर्जरी, हमारे सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा, उसने पहली बार सर्जरी आज से 2400-2500 साल पहले इन्होंने सर्जरी किया था, और वो भी प्लास्टिक सर्जरी. तो ये सब चीजें हमको जानना चाहिए. मेडिसिन सिस्टम जो है, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है, जिसका हमारा बड़ा ज्ञाता है, और जो ग्रंथ जिसने लिखा है वो चरक है. तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हम जो कुछ करते हैं, तो हम वेस्टर्न से जो ट्रांसलेट होके आया है, इवन आज यहाँ बैठे हुए जितने 28-30 साइंस के बडिंग साइंटिस्ट, वो कुछ बाहर ढूंढने जाएंगे तो वेबसाइट से ढूंढेंगे, और अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ आपको ज्ञान मिलेगा. आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि ये सब चीजें संस्कृत में लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुआ है. आप इनका ओरिजिनल जिस्ट लीजिए. अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम यही जानेंगे कि भाई ये अंग्रेजों ने सब कुछ किया है, और अंग्रेजों ने हमारे सामने, मैं कोई यहाँ डिफरेंस नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सब सिस्टम जो हम यूज करें, दे आर द सीरीज ऑफ रिसर्च. एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो वो भी आर्यभट्ट ने 499 एडी में, और लता देवा ने, ब्रह्मगुप्ता ने 628 एडी में ये सब कैलकुलेशन किया. सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स और ग्रहों की गति, ये सब चीजें हमको इस सुवर्ण काल में आज से 1400 साल पहले हमारी अर्थ की जो स्पिन है, स्पिन गति और डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ, ये सब हमको कैलकुलेट करके दिया. ग्रेनाइट का टेम्पल सबसे बड़ा पहला वर्ल्ड का ग्रेनाइट टेम्पल जो तांजावुर में है, तो ये भी हमारे ही स्थपति ने दिया. आप अगर दक्षिण भारत में अगर प्रवास करोगे तो विश्व के बड़े बड़े मंदिर, मीनाक्षी के से लेके बड़े बड़े मंदिर, और वो भी कोई सॉफ्ट स्टोन में नहीं, हार्डेस्ट स्टोन में कार्व किया गया है. कैसी टेक्निक थी. आप कर्नाटका या तो तमिलनाडु, इन सब के मंदिर देखोगे तो एक एक चीज आपको ताजुब होगा कि कैसे इतने बड़े पत्थर को इन्होंने काटा होगा और इतनी बारीक नक्शी की होगी. ये सब जानने जैसी चीज है. प्लास्टिक सर्जरी भी 6th सेंचुरी बीसी की हमारी देन है.
कैटरेक्ट सर्जरी भी हमारी देन है। मैं सभी चीज आज यहाँ इतना डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगा। आपको अगर ये चाहिए तो मैं आई कैन सेंड दिस पीपीटी टू द ऑर्गेनाइजर्स. Lao Tse is also in other, I mean, other than Indian philosophers and scientists. See, these were the philosophers. My simple submission here is that you should know that the early people, they were not scientists. They were the philosophers. And they used to unfold the philosophy of the nature. And in that process, they have discovered several processes. Though it is a the organic process, inorganic process, though it is a organism प्राणी related या कोई सजीव सृष्टि related कोई process है, या तो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस है, या तो जो प्रोसेस हमारे आज इर्द गिर्द हर एक स्फीयर में हो रहा है, हाइड्रो टू एटमॉस्फेयर टू बेरिस्फीयर टू लिथोस्फीयर, जो प्रोसेस हो रही है, इनको इन्होंने जाना है, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं. और इसलिए जो जितने हमारे भी साइंटिस्ट, आर्यभट्टा बोलो कि कोई भी, मैं अभी जितने नाम बोलता हूँ और बोलूंगा, इन सब लोगों को हम फिलोसोफर बोलते हैं, जो सभी चीज में दिलचस्पी रखते थे और इन सब का जिस्ट हमको देते थे. तो ये लाओ से भी एक चाइना का बड़ा फिलोसोफर था. हमने ये प्रमाण है कि 3rd 4th सेंचुरी में जीरो का आविष्कार किसने किया. इंडियन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में जीरो का पहला प्रमाण इस मैन्युस्क्रिप्ट में मिला है. मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिस्टम में जैसे मैंने बताया, तो ऐसे वेट जो डेसिमल सिस्टम का आविष्कार हुआ. एरिस्टोटल नाम का एक दार्शनिक हो गया ग्रीस में, सबको मालूम है, लेकिन वो एक्चुअली कोई, हम आज समझते हैं कि दार्शनिक क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, वो ऐसा नहीं था. इनको he was interested and he did so much of work in his lifetime. You can see and read the kind of spectrum in which he did: biology, botany, chemistry, ethics, history, logic, metaphysics, rhetoric, philosophy of mind, philosophy of science, physics, poetic, political theory, psychology, zoology. इतना स्पेक्ट्रम में ये लोग काम करते थे. एक ही लाइफ, जो आप जितनी लाइफ में जीते हो 50, 60, 70, 80 साल, इतनी ही लाइफ स्पान में इन लोगों ने काम किया है. जबकि उसका काल था 3684 BC. दैट मींस आज से कुछ 2384 साल पहले. तो ये सब डिटेल में हम नहीं समझेंगे. आर्यभट्ट की मैं बात किया, हम आगे चलते हैं कि आर्यभट्ट ने क्या क्या किया है. आप देख सकते हो कि इन्होंने हमको इक्लिप्स के बारे में समझाया, गति के बारे में समझाया, सूरज की गति के बारे में. इन्होंने पाई का मूल्य समझाया. सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने पाई का मूल्य समझाया. 1400 साल पहले पाई का मूल्य हमने ढूंढ लिया था, और वो भी इतने प्रिसीजन के साथ. ये सब चीजें ऑलरेडी आपको ग्रंथ में मिलेगी, देख सकते हो ना चिराग. हाँ सर, इट इज विजिबल, देख सक रहे हैं, स्लाइड चेंज हो रहा है. विजिबल है ना. तो हम अगर आगे चलते हैं तो मैं सिर्फ भारतीय दार्शनिक, भारतीय विज्ञानी और भारतीय स्कॉलर की ही बात नहीं करता, मैंने सभी को लिया है. इसमें अल बरूनी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर history of the Asia, because he was attracted by our scholars. Because our scholars, as I recently narrated to you, that our scholar in the golden period, that means 1st century, I mean 3rd to 4th century BC till 8th or 9th century AD तक का जो गोल्डन पीरियड था, हम उसको बोलते हैं कि अलग अलग काल, जो गुप्त डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी, और जिसमें हमने सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जैसे कि तक्षशिला इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. नालंदा इसके बाद आई. तक्षशिला यूनिवर्सिटी 700 BC से स्टार्ट हुई, जब इस संसार में महावीर बुद्धा भी नहीं थे. इससे पहले तक्षशिला का स्थापना हुई थी.
जबकि नालंदा 300 समथिंग बीसी में हुई, मतलब 2300 साल पहले। तो ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसी 8 यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम में, इस सुवर्ण काल की बात करता हूँ, जिसमें बड़े बड़े रिसर्चर थे। करीबन 1500, एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तक्षशिला, इसमें 1500 जितने स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और कई 15,000 से 17,000 स्कॉलर्स काम करते थे। मतलब बच्चे थे जो बाहर से आके कई देशों से, उसमें चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, टर्की, सभी जगह से रिसर्चर आके वहां काम करते। तो सोचिए कि उस समय हमारी ख्याति पूरे विश्व में थी। और उससे दिस पर्सन अल बेरूनी, सॉरी, Al-Biruni was attracted, and he was really interested in studying the Vedas, studying several scriptures. That time it was existed in India in that Suvarna Kal. सुवर्ण काल जब खत्म हुआ और मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करना शुरू किया, जो कि 9वीं 10वीं शताब्दी एडी, तब जब गजनी यहाँ अपनी सेना लेके आए, उस सेना के साथ उनके पूरे काफिले के साथ अल-बरूनी आया था, क्योंकि वो फिलोसोफर था, वो साइंटिस्ट था, वो मैथमेटिशियन था। अल-बरूनी को उन्होंने हायर किया, सब सुविधाएं दी, और बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग द वेदा, लर्निंग द स्क्रिप्चर्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड इन इंडिया। इनका ये मकसद था। लेकिन गजनी उसको अलग तरीके से यूज करता था कि भाई मुझे युद्ध करना है, मुझे इंडिया में जो सुवर्ण है, सोना है, वो सब मुझे लूटना है, इसलिए इनको लिया गया था। बहुत बड़ी कहानी है, आप कभी फुर्सत में, इसकी किताब है अल-बरूनीज इंडिया, तो ये पढ़िएगा, मिलती है मार्केट में, अमेज़न में भी मिलती है। इन्होंने कई आविष्कार किए, और जब ये 13 साल भारत में रहा, तब तक्षशिला, नालंदा और दूसरी कई यूनिवर्सिटीज में गया। इन्होंने बहुत जगह ब्यौरा किया, हर जगह जाके वो पढ़ता रहा। उन्होंने संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हालांकि वो अरबिक था, उज़्बेकिस्तान से आता था, इनकी मदर टंग अरबिक थी, लेकिन 13 साल में उन्होंने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत में वो विशारद माहिर हो गया। इसके बाद he has translated Veda into Arabic language. He was the fond of the Bhagavad Gita and he was the fond of the Lord Krishna. आप समझिए कि ये इन लोगों ने इतना हमसे प्राप्त किया है, तो आज उसको बोलते हैं कि फादर ऑफ द मॉडर्न जियोडेसी। जो हम आज जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, उसके पीछे जियोडेसी नाम का एक शास्त्र है, तो उसका फादर माना जाता है। लेकिन उनके पिताजी तो हमारे पास, दादाजी, सभी लोग मौजूद थे, इनसे ही ये सब ज्ञान प्राप्त किया। अभी देख रहे हो, पूरी किताब पढ़ने जैसी है। आई गिव दिस सिंपल सजेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस ऑन दिस डायस। भास्कराचार्य ने उसी दौरान, मतलब 1112वीं शताब्दी में क्या क्या किया, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे। सिद्धांत शिरोमणि नाम का जो ग्रंथ है, इनमें जितने संस्कृत के ग्रंथ में उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या काउंट किया। यहाँ ये 3 पूरे अर्थ का जो ऑर्बिट है, सन के आसपास हमारा जो मूवमेंट है, ऑर्बिटल मूवमेंट है, उसको इतनी प्रिसीजन से उसने काउंट किया। 365 डेज 0.25875 इतने डेसिमल में इन्होंने डेज को काउंट किया। तो आप सोचिए, आज के जैसा कोई गणक यंत्र, कोई कंप्यूटर था नहीं, तभी उस टाइम दे हैव कैलकुलेटेड। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, सिद्धांत शिरोमणि, इफ यू सी everything of
the today's arithmetic and algebra is given, everything is written there. Similarly, if we come to the 15th century AD, okay, the Leonardo da Vinci is a very famous personality, and he was also Darshanik. He was also the philosopher, he was also the mathematician, he was also the साइंटिस्ट. ये सभी एक ही चीज, एक ही आदमी में ये सब था. आप देखिए कि उन्होंने कितने पेंटिंग्स किए. उनकी आज जो द डायरीज, इफ यू सी इट, ही हैज गिवन एवरीथिंग. He has learned botany, he has learned human anatomy, he has learned the human organs which is inside. एक एक ऑर्गन को उन्होंने अच्छी तरह से चित्रण किया है. हमारी ज्योमेट्री, ह्यूमन की ज्योमेट्री, नेचर में क्या क्या ज्योमेट्री है, दूसरे प्राणी में क्या ज्योमेट्री है, इनका सटीक तरीके से हमारे सामने ये रखा. उन्होंने विमान भी बनाया. तो देखिए एक दार्शनिक कितना काम कर सकता है. हम सिर्फ लियोनार्डो विंसी को मोनालिसा से जानते हैं, ऐसा नहीं है. आप कभी फुर्सत में पढ़िएगा लियोनार्डो दा विंसी के बायोग्राफी को पढ़िए. 1452 से 1519 में हो गया. उसको एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, कार्टोग्राफी, पेंटिंग, पेलियोंटोलॉजी सब में इन्होंने इंटरेस्ट था नहीं, इन्होंने बहुत काम किया है. जो आज हम जियोलॉजिस्ट भी इसका यूज करते हैं, कार्टोग्राफर भी यूज करते हैं. पाई की वैल्यू जैसे मैंने बताया, जो आज बोधायन ने दी है. बोधायन ने जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री का पहला ज्ञान पाइथागोरस से नहीं दिया है, बोधायन ने दिया है 5th सेंचुरी एडी में. ऐसे पाई की वैल्यू भी इन्होंने दी है. हम ये जानना चाहेंगे कि इतना हमारा स्वर्णकार इतना मजबूत था. स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, मैं कहीं अलग एक पहलू में आपको ले जा रहा हूँ कि जियोलॉजिकल एंड मेटालर्जिकल सिस्टम भी समझना चाहिए कि हमको आज जिंक की जो ओर मिल रही है वो राजस्थान में मिलती है और पूरे वेस्टर्न इंडिया में और कहीं नहीं है. तो इसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं. तो जस्ता को कैसे स्मेल्टिंग किया जाए, वो टेक्निक ये आज से 1400 साल पहले यहाँ राजस्थान के लोगों ने आविष्कार किया था. क्योंकि इसके भी 2-3 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा. इस पर्टिकुलर टेक्निक को यहाँ से यूरोपियन जब आए, 200 साल पहले की बात है, इसी टेक्निक को लेके इन्होंने यूरोप ले गए और वहाँ ये जसत का जो स्मेल्टिंग है वो टेक्निक, they have adopted this technique because before that Europe did not know how to smelt the zinc. It is only the Indian system they adopted and they started smelting the zinc. Similarly, if you see all over the world, the Petra of Jordan is also one of the marvel how they created such a wonderful monuments, cutting the rock formations. If you see the Great Wall of China, how did they do? So this is basically 2000 years old monument, and that is more than 2000 kilometer, 2500 kilometer long. So what was the skill? How did they, without the satellite, how did they actually plan this kind of system? तो जब हम ये सोचते हैं तो हमारा दिमाग सही में चकरा जाता है कि कैसा रिसर्च इन लोगों ने किया होगा. आज हमारा एक छोटा सा घर बनाने के लिए हमको पूरी जिंदगी लग जाती है. इनके पास बड़ा काफिला था, बड़े मैन पावर थे, लेकिन इनको मैनेज करना और ये सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन करना 1 लाइफ में, 10 लाइफ में, ये तो 10 लाइफ का से भी ज्यादा समय लगा था. ऐसे ही एक मार्वल है और एक अजूबा है जिसको हम बोलते हैं माचू पिचू पेरू के अंदर है, जो करीबन 3000 से ज्यादा मीटर ऊपर है, 3 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर है. और ये इतना 1000 मीटर ऊपर होने के बावजूद भी इतना सही तरीके से इन्होंने
कैसे ये पत्थर को सेट किया होगा, इनका सिविलाइजेशन है यहाँ। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा अजूबा है, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ भी है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में कैसा, क्योंकि ये जगह जो अलग है, हिमालय जैसी है, हिमालय भी अलग है, यहाँ कितनी स्टीप पहाड़ियां हैं, इनमें कैसे इन लोगों ने ऊपर पत्थर भी चढ़ाए, इनको नक्काशी भी की। कुछ चीजें हैं जैसे कि नाइल रिवर बेसिन में बड़े बड़े पत्थर को इन्होंने मूवमेंट किया, वो अलग जगह है। तो एवरीवेयर द काइंड ऑफ रिसर्च adapted, the methodology adapted was different, and that too without any system which we are now having, the remote sensing, the GPS system, geodetic system, movement करने के लिए हमारे पास bulldozers, helicopters, सब कुछ है, aircraft. Without everything they did. This is very young in terms of everything, but this is also a kind of marvel. So now with this simple background, we now come to the present world. चिराग दिख रहा है ना? हाँ सर, विजिबल है। हाँ, so we come to the present world where our institute, as you were introduced by one of our scientists, Dr. Sharma, Kamlesh Verma. He might have introduced you to what kind of interdisciplinary and multidisciplinary research we are doing in our institute. That, but the common cause कि हम क्यों करेंगे कि एडवांस एनालिटिकल टूल्स का हम यूज करते हैं फॉसिल स्टडी के लिए, जियोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास कई 15-20 हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जियोक्रोनोलॉजी के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए, ओएसएल डेटिंग के लिए, यूरेनियम थोरियम डेटिंग के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इन सब का उपयोग हम किस चीज के लिए करते हैं? हम कोई पृथ्वी के ऊपर कोई पत्थर या तो कोई सेडिमेंट या तो पानी, इनकी आयु नक्की करने के लिए करते हैं। हम ये कहाँ से आया, उसकी ओरिजिन ऑफ दैट सेडिमेंट वो करने के लिए, या तो वो कितनी वेदरिंग प्रोसेस से गुजर के आज यहाँ बैठा है। ये पूरा ट्रेल होता है। ये ट्रेल का हम अभ्यास इन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जब अगर इस इंस्ट्रूमेंट का मेरे पास if I don't have such instruments, and if the physics has not invented such instruments, the geology, all geological concepts are totally erroneous. I would say कि ये इतने जियोलॉजी के हम जितने फंडामेंटल और इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके पीछे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का हाथ है। पैलिनोलॉजिकल स्टडीज, तो हम पैलिनोलॉजी छोटे से छोटी पोलन, पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम जब स्टडी करते हैं, तो इसको बड़ा बनाने के लिए, 1,00,000 गुना बड़ा बनाने के लिए हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो इफ दैट SEM has not been invented by the physicists, the other sciences, the pure sciences like geology, like environmental science, they might not have come to this stage, or we would have some limitations. Okay, so these are the things which generally I can say that our institute is very unique in Asia, where we incorporated most of these proxies. For example, our scientists work for the evolution of the life, and for that, these all instruments here you have seen, the geochemical instruments, XRD, XRF, ICP-MS, IRMS, GCMS, LPSA, nutrient analyzer, DNA fingerprinting, all these instruments we use to achieve the objectives of many of our basic sciences. Okay, so I'm not narrating each and everything, but you must, I'll give you a little bit of small examples that in our projects, this is the 8 number projects where we have largely we want to understand the Indian monsoon, कि हमारे भारत में ईस्ट टू वेस्ट कितने क्लाइमेटिक जोन है, और वहाँ जो मॉनसून आती है
में अप्रैल जून के महीने में, और उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार से हम फ्यूचर में कब कब कैसी कैसे मॉनसून रहेगी, पहले 100, 200, 500, 1000 साल पहले मॉनसून की पैटर्न क्या थी, ये सब जानने के लिए हम इतना मशक्कत करते हैं, इतना मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया, इस सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके बेसिकली हम क्लाइमेट को जानना चाहते हैं, पेलियो क्लाइमेट को जानेंगे। इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, जिसमें कितने पहलू है, सन, दैट मीन्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड टेरेस्ट्रियल, हमारे सिस्टम का कितना इश्यूज है वो जानते हैं। बेसिकली हम इस मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ 25 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, इन सब का लेकिन ऑब्जेक्टिव एक या दो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। So I'll go speedily about the system because our scientists have taken this lecture and you are aware about what kind of proxies we are actually addressing. Biotic proxy में हम organic world microfossil पे काम करते हैं, siliceous microfossil पे काम करते हैं, पैलिनोफेसिस पे काम करते हैं, एबायोटिक में आइसोटॉप स्टडीज होते हैं, उसमें कार्बन ऑक्सीजन आइसोटॉप का स्टडी करते हैं, जियोकेमिस्ट्री में भी हम XRF, XRD, ICP का यूज करके हम प्योर जियोकेमिस्ट्री में there are n numbers of issues which we address using the geochemical parameters. Organic geochemistry is altogether a different branch. Particle size analyzer and particle size को जानने से एक robust idea हमको मिलता है about the sediments. So these are all different proxies and there are n numbers of proxies which all together we get the understanding of the changing of the climatic conditions. Carbon 14, ये dating होता है, geochemistry, geochronology is different kinds of dating. We also have recently new branch which is called ancient DNA, dendrochronology, species distribution modeling. So there are n numbers of subjects interdiscipline which are involved in this particular large system. We are going to procure within maybe a few months the microcity facility that will be beneficial to many scientists, many even corporate people, many industries, they will be benefited using these microcity facilities. I'm not going to explain you how it is important, where it is important. Something is written here, but this is not that forum. But my simple submission is that you should know that all this science together basically will give you a very good picture. Whether it is a physics, इसमें बहुत अच्छा physics का knowledge अगर नहीं हो तो ये instrument नहीं बन सकता, बहुत अच्छा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं हो या तो सिंपल केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं हो तो ये इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं सकता। अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता तो कोई जियोलॉजिस्ट, कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट वो काम नहीं कर सकता और कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये चीज सब कुछ एक साथ होती है। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं, हम इतने कन्वीनियंट युग में है कि अगर आप ये बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है तो ये और मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई अभी क्वेश्चन आएगी नहीं। आपको ये काम करना है तो पूरे दुनिया में नहीं, पूरे इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। दिस फैसिलिटी वी आर ऑल्सो प्रोक्योरिंग दैट कॉस्ट मी अराउंड 30 crore rupees, 26 to 30 crore rupees. So this 28 crore rupees, and that is called AMS dating methods. So these are the things which we are having in our institute and we are procuring. XRF core scanner. I am just skipping all the slides, but the ultimate goal is to synchronize all the sciences, whether it is a basic science, applied sciences. We have to come together and we have to synchronize, and then you get a very, very sharp interpretation and very it should be very errorful if you use these all techniques. Then you have
luminescent dating laboratory. That will give you another, the age of the particular sediments. We are not going into the details. If you look at some other aspects in geoscience and physics, so then you will have a list of different disciplines where the physics is directly involved in the geosciences. There's a planetary geology and cosmology, mineral deposits and exploration techniques. Where physics is not there, we cannot even identify any mineral deposits. We cannot even quantify any mineral deposits. Earthquake geophysics and seismology, फिजिक्स का फंडा बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं समझ सकते हैं तो आप अर्थक्वेक जियोफिजिक्स नहीं समझ सकते. Likewise, all these sciences which I have given here, geoscience disciplines, hydrogeology, classical crystallography, everywhere physics is directly involved. Chemistry is also involved. So I have not given other chemistry here, but chemistry is also, even material science is also involved. If you know this Earth's existence, their movement, their all aspects, you must know the astrophysics. You must know many things about the physics, okay, and chemistry, nuclear reactions, nuclear chemistry, everything you should know. Otherwise, you cannot jump to the conclusion about the Earth's existence also. So these are all some of the slides where we just to know the universe. So ultimately, as an astrophysicist, you come to you want to know the actual existence of the universe. But that is also a collage of several sciences. Okay, and why we should know the existence of the universe? Because we are also going to be in a big cycle. So sometimes the universe has a new cycle. So हम जहाँ है वहाँ से हमारा सूरज भी कभी मृत्यु के प्रति जा रहा है, हमारी पृथ्वी भी डेथ के प्रति जा रही है, और कब जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इनकी हमारे पास सटीक जानकारी होना जरूरी है. ये सब चीजें हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे. हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हर साइंस एक साथ जुड़ा हुआ है. जैसे कि हमको पेट्रोलियम भी ढूंढना है, तो पेट्रोलियम ढूंढने के लिए भी ये जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स का यूज करके हम नीचे कितना मात्रा में पेट्रोलियम है, कहाँ है, कितना डीप है, हम कितना बोर करेंगे, कितना ड्रिल करके कैसे निकालेंगे, ये पूरा 3 डायमेंशनल पिक्चर आजकल कंप्यूटर भी नहीं होता तो आजकल हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो जितना हमने अलग अलग प्रकार के किया है, हमने नई नई गैजेट्स यूज किया है, सबसे हम अल्टीमेटली हमारी सिस्टम को बहुत ही शार्पन करते हैं और बहुत ही एरर लेस करते हैं. So these are some of the photographs where we use these different physics, geophysical instruments and the laws of physics to get some information which is lying below the earth, even to know the earthquake recurrence, even to know how many times earthquake has actually strike in some area. So this is that work, my work in 2003, 2004. These are some of the work where we and SEM. I think I would skip some of the slides which you are aware about the scanning electron microscope and how they are useful in our science, day-to-day science, not day-to-day, but the micropaleontology, even day-to-day science, SEM is useful. There are n numbers of use of SEM. And you see, there are the pollens, different pollens and pores. I think you know that the pollen is the identity of that particular plant. So we have thousands of pollens records. We call them treatises. Thousands of micro invertebrates. Sorry. Thousands of the foraminifers. These are small ones are foraminifers. They can also be identified. They have identified. People have identified in thousands, and they are of different age. They are of different climatic conditions. तो ये सब जानने के लिए अगर हमारे पास SEM नहीं होता तो हम इसकी टोपोग्राफी, उनकी सरफेस मॉर्फोलॉजी नहीं जान सकते. ये सब चीजें हम जरा
स्किप करते हैं कि क्योंकि यूज करते हैं 1970s में ये विद द रिसर्च we made very good instruments, X-ray diffractometer. In next generation 1990s में तो CCD का आविष्कार हुआ, तो हमने और अच्छा डिटेक्टर यूज किया. इसके बाद आज हम XRD का यूज करते हैं. बहुत ही चंद सेकंडों में हमको एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये सब चीजें धीरे धीरे इन रिसर्च के जरिए हमारे पास सामने आई. इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर EPMA, जो कोई भी मिनरल का बहुत ही पूरा विश्लेषण करना है तो ये EPMA से होता है. एंड यू कैन सी each mineral from that point you can analyze their total chemical composition and do many things. Even it is a elemental analysis can also be done with using. And now we come to the GPS systems, remote sensing systems. So जब से remote sensing कैमरा और satellite system का आविष्कार हुआ तो और भी दुनिया हमारे लिए छोटी हो गई और जानने के तरीके बहुत बढ़ गए. आपको ये बताने का कोई आप जानते ही हो, मतलब आप हमेशा मोबाइल में बहुत कुछ मैप्स देखते हो, गूगल मैप्स देखते हो, गूगल अर्थ देखते हो, सब कुछ चीज है ये कई सैटेलाइट के जरिए आपके सामने आता है. ये सब चीजें बहुत ही अनूठी है आज के युग में. लास्ट 30 इयर्स में ये सब चीजें जो हमारे सामने आई है, तो एक वॉर टाइम इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी वॉर में होती है. ये सब चीजें जानना जरूरी है कि जितना हमारे पास ये आविष्कार हुआ है तो उसी चीजों में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या गल्फ वॉर में बहुत सारी चीजें का आविष्कार हुए जो अभी साइंस यूज कर रही है. आज हम GPS का यूज करते हैं. तो ये सब चीजें हमको बिजनेस, रिक्रिएशन, सर्वेइंग, लोकल प्लानिंग, मिलिट्री, एविएशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल रिसोर्स एजेंट्स, पब्लिक सेफ्टी, सब में आज GPS यूज कर. 91 में जब GPS का US नेवी ने ओपन किया तब गल्फ वॉर के लिए इन्होंने यूज किया था. गल्फ वॉर खत्म हो गया, इसके बाद इस GPS का यूज आम जनता या तो कार्टोग्राफर या जियोलॉजिस्ट शुरू किया. तो आतंकवादियों ने भी काम शुरू किया था कैसे यूज करते हैं, और इसके लिए US नेवी ने एक छोटा सा एरर रखा था, लेकिन उस एरर से हमारे साइंटिस्ट को बहुत बाधा आती थी. तो इसके बाद दे हैव रिमूव द एरर आल्सो. So these are all different systems where different sciences are collaged together and we make a very beautiful life. And we should know that life should be beautiful. Using all these gadgets, using all these fundamentals of the science, using all these machines, life should be beautiful and sustainable. Okay, so this is the end of this lecture. Hope you have understood my idea of what I want to transmit to you. Sir, it was indeed a very insightful lecture, and I hope everyone has learned and gained enough knowledge about how research works in general. Okay, is there any question session? I would. नहीं sir, it is open to question sessions right after you end the presentation. अगर किसी को कुछ doubt है तो sir को पूछ सकते हैं अभी. ये समझे कैसा है, उसमें कुछ डाउट जैसा कुछ नहीं है. मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है, मैंने सिंपल फिलोसॉफी साइंस की समझाई है. Right, right, absolutely. They would have any question because this is all the perfect knowledge and history of the science and interdisciplinary multidisciplinary science I have given to you. So if you have question anytime you can ask, and my email ID is there. You can share my email ID to all students. Okay. Sir, thank you so much, and hearty congratulations on your new publication in the Nature Scientific Report. It itself so that is focuses on joint how with our department. That is joint publication. Seema Sharma is there. Rupak Dey is Absolutely, there. sir. So basically, Rupak and Seema's work. I am just sitting in the back and just giving them the very beautiful ideas. Okay, idea is very important. I know. But, anyway, congratulations to the department also. Okay, should I leave, Yes. Chirag? Yes, sir.
Yes, Okay, sir. best Thank of you so luck much, to sir, all for your lecture. all students. Yes, sir. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर भंडारी सर का है, वो 12:30 को होगा.
Students, due to some issues, sir, Bhandari sir will not be able to take the lecture as of now. तो आपका आफ्टरनून सेशन में 3 लेक्चर हो जाएगा कंटिन्यूस. तो राइट नाउ यू कैन लीव. जो पोस्ट लंच सेशन है उसमें आपके 3 लेक्चर्स होंगे. पोस्ट लंच सेशन के टाइमिंग क्या रहेगी? 2:30 बजे से या 3 बजे से? हाँ, वो आपको लंच तक बाय 2:30 या 3 o'clock के पहले तक आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे टाइमिंग के साथ में. ओके, थैंक यू. मोस्ट वेलकम.